یہ میرے پاس ہے، یہ ہمارے پاس یہ ہے عمران خان جو ان نوٹوں کی وجہ سے انشاءاللہ خان صاحب کا آرڈر ہے کہ دھاندلی ہم نے خود روکنی ہے، جو غریب کی فائدے میں نہیں ہے ہمیں اس بندے کو نہیں چاہیے۔ ان نے چوری اور ڈاکے کے علاوہ اور کوئی کام کیا نہیں ہے، انہوں نے عوام کو ہمیشہ ستایا ہی ہے۔ اور وہ جو مولانا فضل الرحمان ہے ڈیزل جو کہتا تھا مہنگائی ہے، آج وہ کدھر ہے؟ کدھر ہے مولانا جس نے اتنے جلسے کیے اور یہ کہتا تھا مہنگائی مارچ کر رہا ہے؟ آج پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو ان نوٹوں کی وجہ سے ہم نے انشاءاللہ ان نوٹوں کو شکست دینی ہے اور عمران خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنانا ہے۔ اور یہ لوٹا صغیر ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے حلقے سے لوٹا ہوا ہے راجہ محمد صغیر، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا لوٹا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جنگل میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ساری چیزیں سب کو بیچ گیا ہے۔ میری عمر یہ ہے سن 1937 کی عمر ہے، ماشاءاللہ۔ اس وقت میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ سب آتے جاتے دوسرا تیسرا ہوتا رہا۔ بے نظیر پٹو قطر میں پٹو جو اس وقت آیا تھا، اس وقت میں پنڈی تھا، بائی سائیکل کا کام کرتا تھا۔ ابھی کیا کروں، ابھی 94 سال عمر ہو گیا، 94 کے نزدیک ہے، کیونکہ ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تو بڑا خوش ہوں کہ اللہ پاک مہربانی کرے گا، شاید ہمیں روٹی تو ملے گی نہ غریبوں کی۔ اچھا بابا، آپ نے پرانا پاکستان بھی دیکھا ہے، نئے پاکستان بھی دیکھا ہے، بابا ایک قوم کے اعظم کا پاکستان بھی دیکھا ہے، کون سا پاکستان زبردست جا رہا ہے؟ پہلے پاکستان جو ہے پٹو کے دوران بھی اچھا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے ہر اس کو آنکھیں کھولا تھا کہ بھائی آنکھیں کھولو، یہ لوگ ایسے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بھی آئے، بے نظیر آئے، سب آئے ہیں، تو پھر ان کے بعد کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ میرے ضمیر میں منہ میں۔ یہ پٹو صاحب نے بولا تھا لنگ میں، یہاں سے میں اس وقت دال بیچتا تھا، میں ایسے کھڑا تھا اس کے ساتھ، ایسے میں نے رکھا ہوا تھا تھیلا، تو مجھے کیا لوگوں کو کہنے لگا یہاں سے لے کے وہ ریسٹ ہاؤس جو ہے نا اوپر والا لنگ سے اوپر یہ پل بناؤں گا۔ تو پل بنا ہے پر وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، نیچے والی اس کے ساتھ کوئی پل شل نہیں بنا۔ ہاں ابھی جو ہے ایسا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا بنے گا کیا نہیں۔ اگر اس کو بنا دیا گیا تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ بس کس کو بنا دیا؟ عمران خان کو بنا دیا تو کامیابی ہے۔ عمران خان میں کیا خوبی ہے کہ کامیابی؟ خوبی نہیں ہے اور کیا ہے، اس میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو کرے گا خدا کرے گا، ہمیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ابھی یہ مہنگائی بھی، یہ برا ہے، بسم اللہ شکر، مہنگائی بھی ہوا، یہ سب کچھ ہوا، ہم لٹ گئے ہیں ساتھ پہ، ہمارا کام جو ہے یہ بھی رک گیا۔ خدا کرو اس وقت گتا جو ہے 35-40 روپے کر دیا، 35-40 روپے کر دیا، تو وہ پٹھان وہ بڑے بڑے پیسوں والے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، ہم غریب اسی طرح رہتے ہیں، کوئی بھی دکاندار ہم کو نہیں دیتا۔ بابا، شہباز شریف، زرداری یا عمران خان، کس کو ہونا چاہے گا پاکستان کا وزیر اعظم؟
किसी को नहीं होना चाहिए। अगर ये इंसाफ और उसकी ज़ात पे है तो फिर इससे होना चाहिए। अल्लाह पाक इमरान खान के लिए खुसूसी दुआ तो करो ना। मैं खुद दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक मेहरबानी कर इस शख्स के लिए। ये शख्स जो है ये मेरे पास है, ये हमारे पास ये है इमरान खान। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज हम निकले हैं काहुटा में खान साहब आ रहे हैं। हमने जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको रिजेक्ट कर दिया है, और ये जो हमारे खिलाफ हमारी वोटों पे जो डाका डाला गया है, जो हमारे साबका MPA थे उन्होंने हमारी वोटों पे जो डाका डाला है, हम कोटा की अवाम अल्हम्दुलिल्लाह से निकली है। और अभी अवाम खान साहब अभी नहीं पहुँचे, लेकिन पिंडाल ऑलमोस्ट भर चुका है। तो अभी इंशाल्लाह जब अवाम देखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि काहुटा ने आज इस लोटे को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। अगर ये लोटा दोबारा मुसल्लत हुआ तो क्या करोगे? सर दोबारा हम इंशाल्लाह इसको मुसल्लत होने नहीं देंगे। अगर कोई धांधली वगैरह का कोई यहाँ पे सीन बना तो हम जो है इंशाल्लाह खान साहब का ऑर्डर है कि धांधली हमने खुद रोकनी है, और हम इंशाल्लाह पूरी जान लगा के इस लोटे को यहाँ से किक आउट करेंगे इंशाल्लाह। अभी 17 को इलेक्शन है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब भाई सब लोग जो है सब बहनें निकलें इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, ये जो रिजीम चेंज हुआ है इसके खिलाफ। और हम जो है किसी के गुलाम नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला खान साहब का जो हुक्म है उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को यहाँ से दफा करेंगे इंशाल्लाह। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान जिंदाबाद। हम इसलिए पहुँचे हैं कि हमारा जान इस महंगाई से छूट जाए और हमारे जान इस हालत से छूट जाए, क्योंकि इन लोगों के हालात बहुत बुरी और माड़ा होते जा रहे हैं। ठीक है, जिस काम भी जिस बंदा काबूज हो और जिस पर डिप्टी हो उसको वो संभालना चाहिए। ठीक है, उस बंदे को, आवाम को और अपने फैमिली को सबको देखना चाहिए कि हमारे किस हालत में लोग खुश है, उस तरफ जाना चाहिए। अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, सबसे पहले बात ये है। ठीक है, और जो कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो संभाल नहीं सकता है, उस काम को हाथ साफ करके छोड़ना चाहिए कि भाई ये नहीं होना है, ये संभाला नहीं होना है। इस हालत देखो, आवाम की हालत देखो कि क्या महंगाई हो रहा है, कुर्बानी लोग नहीं कर सकते हैं, जो कर रहे हैं लोग कर्जे लेके कुर्बानियाँ कर रहे हैं। ये कोई हालत है इस हालत का, इस मुल्क का और इस आवाम का और इस गरीब लोगों का। जो गरीब की पैदे में नहीं है, हमें उस बंदे को नहीं चाहिए। और जो गरीब आदमी के साथ दे रहे हैं, जो गरीब का ख्याल कर रहे हैं, आवाम का ख्याल कर रहे हैं, उस बंदे को हम साथ दे रहे हैं, और वो जिंदाबाद। हर एक ये कह रहे हैं, जो छोड़ जाता है पीछे कहते हैं जी उसी का गुनाह है। जिसने अपना टोकरा सिर पे रखे वो संभाले, वो उठाए और उसका जो है हिफाजत करे। ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ तो मैं पहले कहता हूँ भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं ये काम नहीं कर सकता। हमें यकीन होना चाहिए जिस काम पर हमने आना है पहले अपने को तोड़ना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जब नहीं कर सकता हूँ तो हमारा तो कान पकड़ कर छोड़ता हूँ। क्यों ये गरीब आवाम लोगों की बददुआ लोग ले रहे हैं, गाली ले रहे हैं, कि कोई गाली दे रहे हैं, कोई बददुआ दे रहे हैं। ये कोई हुकूमत है? हुकूमत तो पहले भी कर चुका है, लोग जो गुजर चुके हैं उन्होंने क्या कुछ किया है, आवाम का ख्याल किया है। खुद न बंगले बनाया है, न खुद अपना ख्याल किया, सिर्फ आवाम का ख्याल किया है। आवाम ऐसे होना चाहिए, हुकूमत ऐसे होना चाहिए जो आवाम का ख्याल करे। जो नहीं करते वो हमें नहीं चाहिए किसी वक्त भी। इस महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है या मौजूदा हुकूमत है? वजह ये है कि इसने तो 4-5 साल भी नहीं पूरा किए है। इसको तो छोड़ना चाहिए कि आखिर एंड तक ये क्या कर रहे हैं। वो हुकूमत हो जो आम इलेक्शन के साथ आए, आम वोटों के साथ आए। ठीक है, जो चंद वोटों के साथ आए वो हुकूमत आवाम कैसे मंजूर करे? जी किसी को पता ही नहीं है हुकूमत पे आया है। देखो, जिम्मेदार वो बंदा हो जिस काम पर मौजूद हो, जो जिसका डिप्टी हो, अगर वो जिम्मेदार है उसको पकड़ लेना। उसको जो उसने कुछ किया वो कह रहा है मैंने कोई माहिदा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो उसको पकड़ कर कैद से लाए कि भाई कौन सा माहिदा इसने किया। अगर माहिदा के तो उसको माहिदा जो किया उसको करना देना था कि आवाम के साथ वो क्या कर रहे हैं। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। इन लोगों ने पहले भी मुल्क के अंदर जितनी भी ऐसा हुकूमत इन्होंने की, इन्होंने चोरी और डाके के अलावा और कोई काम किया नहीं है। इन्होंने आवाम को हमेशा सताया ही है। जैसे अभी जो है ना महंगाई हुई है, ये सारा कचरा सारा मलबा नून लीग पर डाल रहे हैं, अपना PTI के ऊपर डाल रहे हैं। इमरान खान ने
IMF को डट कर कहा कि मैं महंगाई नहीं करता हूँ, उसके अंदर दिल था तो उसने कहा ना ये मर्द के बच्चे बने, ये भी IMF को बोले ना कि हम महंगाई नहीं करते। लेकिन ये चोर हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बातें इसलिए आगे रखी हैं कि जी इमरान खान की वजह से महंगाई की है कि हम चोरी करें, हम बैरून मुल्कों से जो कर्जा लेते हैं वो कर्जा लेकर हम खा जाएं, हम अपने जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाएं, और इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। ये कोई अवाम की खिदमत ना इन्होंने की है, ना ये अवाम की खिदमत कर सकते हैं, ना इन्होंने पहले भी की है। पीपल्स पार्टी नून लीग कह रहा है महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है। पिछले 30 साल तक हुकूमत इन्होंने की है, मुल्क का बेड़ा इन्होंने गर्क किया है, और ये मलबा इमरान खान पर डाल रहे हैं कि महंगाई इमरान खान ने की है। हुकूमत तुमको तो कर लियो और महंगाई इमरान खान कर रहा है, ये भी कितना संगीन मजाक है। ये जितने लोटे हैं ना जिन्होंने ऐन मौके पर इमरान खान से बेवफाई किया है, ये वोट के हकदार नहीं, जूतों के हकदार हैं और कुछ भी नहीं। इनको वोट नहीं, ये मैं कहता हूँ कि ये जिधर जाएं इनके पीछे लोटे लेकर लगना चाहिए, इन पर लानत भेजनी चाहिए। ये अपना मफाद जिधर देखते हैं ये उधर चले जाते हैं। अवाम का तो कौन सोचता है, अवाम का कोई भी नहीं सोचता। आज हमारा आने का मकसद ये है कि हम इमरान खान के साथ उन लोटू के खिलाफ आए जिन्होंने इमरान खान के साथ छोड़ दिया। आज उन लोटू को हम बताने आए कि हम इमरान खान के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि इमरान खान हमें वापस मिले, वापस आ जाए, क्योंकि उसके बगैर हम गुलामी नहीं कर सकते। वो ये गुलाम है, सारे गुलामी कर रहे हैं और हमें गुलामी नहीं मंजूर, हम गुलामी नहीं करना चाहते। बाकी जो लोटे इंशाल्लाह हम करने शबीर अवाम को 17 तारीख को जिता के रहेंगे, बाकी लोटे मुंह के बल गिरेंगे। और वो जो मौलाना फजल रहमान है डीजल जो कहता था महंगाई है, आज वो किधर है? आज वो राव करके बैठा हुआ है। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर है, हमें इमरान खान चाहिए। मकसद ये है पाकिस्तान बचाना है, इमरान खान साहब को जिताना है, और हमारा सच्चा लीडर है जो पाकिस्तान को जितवाएगा, पाकिस्तान को बचाएगा, वो इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान। किधर के ये नारे मारने वाले, किधर के ये चोर डाकू, ये सारे लोटे अब किधर है बताए? खान की ताकत को कोई नहीं रोक सकता। खान के साथ अवाम की ताकत है, हमारी ताकत है। इंशाअल्लाह हमारा अगला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा, और इंशाअल्लाह मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं खान साहब से मुलाकात करूं। मेरी दिली ख्वाहिश है ये, मैं खान साहब से मिलना चाहता हूं। मैं आज इस हालत में आया हूं, मैं व्हील चेयर पे हूँ, मैं 1 घंटा नहीं बैठ सकता इसमें, लेकिन क्यों आया हूँ? अपने पाकिस्तान के लिए आया हूँ, अपना पाकिस्तान बचाने के लिए आया हूँ, इमरान खान को जितवाने आया हूँ, पाकिस्तान को बचाने आया हूँ। इंशाअल्लाह हम जरूर जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान मेरी जान। किधर है मौलाना जिसने इतने जलसे किए और ये कहता था महंगाई मार्च कर रहा हूँ? अभी किधर गए सारे? बोले मुझे बताएं। ये सारे पैसे खाने वाले, मुल्क लूटने वाले हैं। सिर्फ खान एक जबरदस्त बंदा है, सच्चा आशिक है, सच्चा आशिक रसूल है, सच्चा आशिक रसूल है। हम ये फख्र से कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद। हम आपके सिपाही हैं और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। की